Today we are going to start with a new chapter. We have already completed Poets and Pancakes and then a roadside stand. Now we are left with one poem, Aunt Jennifer's Tigers, and then we are left with some of the chapters. And today I'm going to start on the face of it. Before we started with NCERT, I just want to give you a small summary of the chapter along with its theme and message. एंड स्पेसिफिकली इस चैप्टर से आपके एक तो मैसेज आता है एंड सेकेंडली इस चैप्टर से आपका जो है यू ऑल्सो गेट अ क्वेश्चन वेयर यू आर आस्क्ड टू analyze what is the difference between the two people, the main protagonists in this chapter. The theme of the chapter is optimism. Optimism means to have positive attitude towards anything. And in this chapter, it is towards a life. In our life, what happens? There are many circumstances where we are not able to get what we want. In our lives, we face many situations where life becomes bitter. और उस वक्त में अगर हम लोग जो है इफ वी कीप ऑन लैमेंटिंग, अगर हम उसी चीज को लेकर सिर्फ दुख मनाते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन इज अल्टीमेटली लाइफ विल बिकम बिटर फॉर अस. लाइफ विल बिकम अ बर्डन फॉर अस. वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू लिव. जो आपका चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, it's a phrase, and on the face of it matlab on the whole, overall. So on the face of it means overall what we need is we need to have optimistic approach towards our lives. That is the main theme of the chapter also. The chapter is dealing with two people, completely opposite, complete contrast. One an old person, another one a very young boy. जो old person है, he is Mr. Lamb. He is living all alone in his house. उसकी अपनी कोई family नहीं है. He lives alone. He has a small garden, and in the garden he just takes up some gardening activities. He has small trees, apple के trees हैं, तो he picks up the apple, he makes squashes, और इस तरीके से he is living his life. Whenever he is free, he looks into the birds. वहां पर birds आते हैं, nest बनाते हैं, bee की जो buzzing होती है, मतलब he enjoys his life with the things which is available with him. He doesn't complain. At times he also reads some books. अब उसके जो ये मतलब कि गार्डन है वहां पर कई तरीके के बच्चे आते हैं, and most of the time मतलब कि the garden is always open for everyone. So whenever the children come, they play, and later on what happens is they just go away. They don't come back. Sometimes they come back, they play. और ये जो है जब वो बच्चे आते हैं तो उनको कभी जेली, कभी टॉफी, कभी स्क्वैशेस कुछ देता है, but it's okay. At that period he gets a मतलब एक लड़का उसके पास आता है, डेरेक. नाउ ये जो डेरी होता है, इंस्टेड ऑफ
coming from the main door, he climbs the wall. दीवार चढ़ता है और वहां से नीचे उतरता है. तो मिस्टर लैम जब उसको एनकाउंटर करते हैं तो वो कहते हैं कि देयर वाज नो नीड ऑफ क्लाइंबिंग द वॉल, यू कुड हैव डायरेक्टली कम थ्रू द डोर, डोर तो खुला हुआ है. तो वो कहता है, लेकिन वो कहता है क्या कि तुम अंदर आओगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा? नो. नाउ दिस डेरी इज हैविंग अ बर्न्ट चीक. उसका जो एक पूरा मतलब कि एरिया है चीक का वो जला हुआ है ड्यू टू सम एसिड फॉल. एंड ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने आप से मतलब कि खुद से मतलब एम्बैरेस्ड है. रीजन, everyone who encounters him makes fun of him. उसका मजाक उड़ाते हैं. They feel sympathy. कुछ लोग उसको देखकर जो है बेचारगी करते हैं. ओ बेचारा. उसके कुछ उसकी तरफ देखकर शक्ल बनाते हैं. छी. He is not able to tolerate all these humiliations. तो इसीलिए he is defiant, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट है वो. ही इज विड्रॉन फ्रॉम द अदर्स, मतलब कि फ्रॉम द अदर पीपल. वो दूसरों से बिल्कुल कटा हुआ है. इनफैक्ट उसकी फैमिली में उसके अपने पेरेंट्स भी हमेशा यही बोलते हैं कि क्या होगा जब हम मर जाएंगे, इसका तो चेहरा जला हुआ है. सो ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस एंड ही हैज लॉस्ट द इंटरेस्ट इन लाइफ. तो वो जब मिस्टर लैम्ब के पास आता है तो मिस्टर लैम्ब उसकी तरफ कोई मतलब उसको देखकर कोई कमेंट नहीं करते. इनफैक्ट ही वेलकम्स हिम. और वो जब उससे पूछता है कि आप सारा दिन क्या करते हो तो वो बताते हैं that he normally sits here, he watches the birds, he watches the bees. उनको जो है birds की bees की आवाज सुननी पसंद है. Then he takes up the apples, he makes the squashes, and if he wants he can also help. तो ये जो बच्चा होता है डेरी, वो एक मतलब कि एट वन पॉइंट ही इज वेरी मच ड्रॉन टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब. पेपर का सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये. व्हाई? बिकॉज बाकी लोगों की तरह उसने देखते ही छी या फिर ओ ऐसा कुछ नहीं बोला. He spoke to him like a normal person and he was very friendly. Now the question comes, is there any friendship between an old man and a small young boy? तो yes, friendship जो है that is not confined to any age. फ्रेंडशिप का मतलब जबरदस्ती नहीं है कि you have to go to the cafe to have coffee. Friendship is a bond. एंड वो जो बॉन्ड है वो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम्ब. बट डेरी जिसने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखा है, ही इज पेसिमिस्टिक टुवर्ड्स हिमसेल्फ. वो कहता है कि मुझे देखकर एवरी पर्सन मेक्स अ कमेंट. मिस्टर लैम्ब उसका ध्यान हटाने के लिए उसको एक कहानी सुनाते हैं, द ब्यूटी एंड द बीस्ट. लास्ट ईयर भी ये पेपर में आया था. द ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है इट इज अबाउट, इट्स अ फेरी टेल और इट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस जिसने एक बीस्ट को किस किया और वो बीस्ट एक अच्छा आदमी बन गया. अब वो जो बच्चा मतलब कि हम लोग तो इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं कि भाई बीस्ट अच्छा बच्चा बन गया, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग है. द बीस्ट हेयर इज फॉर द इंटरनल नेगेटिव एलिमेंट्स जो हमारे अंदर होते हैं. एंड द गर्ल, द प्रिंसेस हु हैज किस्ड द बीस्ट इज फॉर दोज पीपल जो दूसरों के अंदर अच्छाई देखते हैं. तो व्हेन अ गुड पर्सन लुक्स गुड इन अदर पर्सन, वो दूसरा इंसान जो है उसके प्यार की वजह से चेंज हो जाता है. यहां पर इवन दो इट हैज बीन प्रेजेंटेड लाइक अ फेरी टेल,
लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। मतलब बीस्ट उस राक्षस को कहा गया है जो शायद दूसरों के लिए बुरा सोचता था, बट द गुडनेस ऑफ दैट प्रिंसेस हैड टर्न हिम इनटू अ गुड पर्सन। वो उसे वैसे जनरल में पूछता है, तुम्हें भी चाहिए, तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि तुम्हें लोग प्यार करें? वो ही इज कंप्लीटली डिफायंट। तो वो कहता है, मतलब मुझे कौन प्यार करेगा? इवन माई पेरेंट्स डोंट सपोर्ट मी, एवरी वन मेक्स फन ऑफ मी। एंड तुम्हें जो है इस ये जो मतलब कि पेन है वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू आर होल, तुम तो पूरे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तो मिस्टर लैम्ब उसको तब एक शॉकिंग रिवोल्यूशन देते हैं दैट ये जो मतलब कि उसके जो पैर हैं दे आर फेक, वो नकली हैं, वो नकली हैं, दे आर टिंड लेग्स, वो आपके जो है टिंड लेग्स हैं। एंड ही हैड लॉस्ट हिज लेग इन अ वॉर, मतलब वो पहले ही वॉज देयर इन द आर्मी, तो उसका जो पैर है वो कट गया था। एंड सिंस देन उसने जो है अपने पैर में जो है टिन सा लगा रखा है, एंड दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम एज लेमी लैम्ब। लेमी मतलब लंगड़ा, तो लोग उसको लंगड़ा लंगड़ा करके चिढ़ाते हैं। एंड मेनी टाइम्स पीपल इवन स्पीक रॉन्ग अबाउट हिम, उसके बारे में गलत भी बोलते हैं। तो ये मतलब कि थोड़ा सा उसको शॉकिंग लगता है। बट बट इमीडिएटली डेरी कहता है, तो क्या हुआ? आप अपने जो ये हैंडीकैप है इसको यू कैन हाइड इन योर ट्राउजर्स, लेकिन आई कैन नॉट हाइड माई डिसेबिलिटी, मैं अपनी डिसेबिलिटी को जो है हाइड नहीं कर सकता। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं दैट डिसेबिलिटी, मुझे तो लोग देखकर लंगड़ा लंगड़ा बोलते ही हैं, एंड जो लोग फन मेरा मजाक उड़ाते हैं आई डोंट केयर अबाउट देम, एंड यू शुड नॉट कीप। लेकिन बीइंग दैट वो तो एक छोटा बच्चा है, मिस्टर लैम्ब इज एन एल्डरली पर्सन, तो वो सब मतलब कि ही कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा होता है। बट एक चीज उसको अच्छी लगती है, बोथ ऑफ देम आर डिसेबल्ड। मिस्टर लैम्ब हैज लॉस्ट हिज लेग्स एंड डेरी हैज अ बर्न फेस। और मिस्टर लैम्ब जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अभी तक में हु हैड बीन सो फ्रेंडली विद हिम, और इसीलिए वो जो है वहां पर टाइम बिताने के लिए खुश। बट नाउ व्हेन द टाइम इज ओवर, उसे वापस जाना है, तो वो मिस्टर लैम को बोलता है दैट आई नीड टू गो बैक बिकॉज माई पेरेंट्स वुड बी लुकिंग फॉर मी। मिस्टर लैम्ब उसको एक ओपन इनविटेशन देते हैं दैट वेन एवर ही नीड्स ही कैन कम ओवर हियर। डेरी कहता है दैट ही लिव्स वेरी फार एंड हिज पेरेंट्स मे नॉट अलाउ हिम टू कम हियर। मिस्टर लैम थोड़ा नाराज हो जाते हैं एंड ही सेज दैट इफ यू विश, if you want to change your destiny, then you are the one who has to take the decision. आपको कोई रोक नहीं सकता है। if you want to come back, you will definitely come back. डेरी जो है ही ट्राइज टू मेक अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो है वो मना कर देंगे, उसको इतनी दूर आने नहीं देंगे, उसका डिस्टेंस बहुत दूर है घर से। तो वो कहता है डिस्टेंस हार्डली मैटर्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, it's you who has to convince your parents. But if you don't want, then कोई भी सामने आ जाए, whoever comes, you would never be able to perform your sins. You would never be able to convince others. It is you who has to convince yourself first. Now
डेरी फील्स बिट ह्यूमिलिएटेड, तो वो कहता है देखो मैं तो आऊंगा, आई हैव लेग्स, यू हैव टिन्ड लेग्स, आई वुड डेफिनेटली कम बैक, सी। तो मिस्टर लैम उसको थोड़ा सा चैलेंज सा करते हैं, दैट नोबडी कम्स हियर, सब बोलते हैं दैट दे वुड कम बट नोबडी एक्चुअली कम्स हियर। तो वो कहता है नहीं मैं तो वापस आऊंगा, ये कहकर वो चला जाता है। नाउ व्हेन ही रीचेस हिज होम, जब वो घर पहुंचता है तो उसकी ममा उसको वो अपनी मदर को बताता है दैट ही हैड मेट मिस्टर लैम हु वाज वेरी फ्रेंडली एंड ऑल। तो उसकी जो ममा होती है शी टेल्स दैट यू शुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज वी हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट दिस मैन, इस आदमी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो आपको जो है यहाँ पर उसके बारे उसको मतलब वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर वो कहता है नहीं मुझे वहां अच्छा लगता है, मैं उनको हेल्प करूंगा, आई पिक अप द एप्पल्स, आई बी वॉचिंग द बर्ड्स। तो उसकी ममा उसको मना करने की कोशिश करती है, बट वो वहां से भागकर मिस्टर लैम्प के पास चला जाता है। Unfortunately, when he is entering into Mr. Lamb's garden, उस वक्त में मिस्टर लैम्प जो है एक सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं जो टूटी हुई होती है टू ब्रिंग द एप्पल्स डाउन। The ladder crashes and Mr. Lamb comes down on the ground and he is dead. उनकी डेथ हो जाती है। तब वो अंदर आता है और मिस्टर लैम्प को देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, but Mr. Lamb is no more. This brings tears in the eyes of Derry. और आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, how do you know that Derry had changed? तो जो वो वापस आया और उसकी जो आंखों में आंसू आए ना, these are the testimonials that he had changed. These are the evidences कि वो चेंज हो गया था। जाने से पहले अपने ऑप्टिमिस्टिक व्यूज, अपने पॉजिटिव वाइब से मिस्टर लैम हैड चेंज द एटीट्यूड ऑफ डेरी। So this is the chapter on the face of it. Though you might not be that much, कभी कभी क्या होता है कि certain times you may be feeling that this chapter is quite boring, but on the other hand, we can say that the chapter gives us the theme of optimism. When we say that, how do we know that Mr. Lamb had died? Even though it is not mentioned that he had died, but if you look that the boy was crying and he was trying to wake up, gives us that idea that Mr. Lamb was no more. Often we come across such people, often we come across some such what you say situations where we become completely negative towards our life. And definitely when we say there is in every cloud there is a silver lining, we need to look positive in every situation and need to, yes, ऐसा टाइम आता है, but we must understand that if somebody is better than me, definitely some might be there who is worse than me. I'm not saying that you have to compromise with the situation कि चलो ठीक है मैं उनसे बेटर हूं, but at the same time we must learn from the situation. So I'm starting the chapter along with the book. The scene is Mr. Lamb's garden, where the tree leaves are rustling, the bird song is there, and Derry जो है वो stealthily मतलब बहुत चुपके से slowly वो घास के थ्रू अंदर आ रहा है। एंड तभी जो है वहां पर मतलब एप्पल्स होते हैं, मिस्टर लैम कहता है माइंड द एप्पल्स। हु इज दैट? होता लैम माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास। वहां पे
ऊपर से जो है लंबे लंबे घास के ऊपर से हवा से गिरा हुआ, यू कुड ट्रिप, तुम गिर जाओगे। यू कुड ट्रिप मीन्स तुम गिर जाओगे। तो डेरी एकदम डर जाता है। आई थॉट, ये देखिए आपकी बुक में ये साइड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वाज एनीबडी हियर। तो कहता है दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, दैट्स ऑल राइट। वो कहता है आई थॉट it's an empty house. Whether it is, since I'm out here in the garden, it is empty. हाँ, घर तो खाली है भाई, मैं तो गार्डन में हूँ। Until I go back inside, in the meantime I'm out here and likely to stop a day like this, beautiful day, not a day to be indoor. भाई घर तो मेरा अभी भी खाली है, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा घर तो खाली है। तो डेरी कहता नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। But not on my account, I don't mind who comes in the garden, the gate is always open. Only you climb the garden wall. यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो कहता है कि भाई मर्जी है तुम्हारी, मुझे मैं कभी मतलब कि आई डोंट आस्क एनीवन, गेट हमेशा खुला होता है, बट तुम जो हो दीवार फांद कर रहे थे। वो कहता है दैट मीन्स यू आर वॉचिंग मी। वो कहता है आई सॉ यू बट द गेट इज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। वो कहता है आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। वो कहता है नो नो, द यंग लैड स्टील्स क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। अरे छोटे बच्चे होते हैं जो एप्पल्स वगैरह उठाते हैं, उनको खाते हैं, क्रम करते हैं, तुम इतने भी छोटे नहीं हो। तो वो कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। मतलब ठीक है, आ गए। तो डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम। मतलब क्या, क्यों क्यों नहीं पता, तुम एक लड़के हो, 13 साल के हो। तो कहता है 13 साल का नहीं हूँ मैं, 14 ईयर्स का हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नॉट नथिंग टू बी अफ्रेड, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। बोलता आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो कहते क्यों, व्हाई शुड दैट बी। वो कहता है एवरी वन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर, व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन। कहता मुझे सब पता है, लोग चाहे मेरे सामने कितना भी प्रिटेंड करें, मुझे देखकर सब डर जाते। कहता क्या देखते, तो व्हाट दे थिंक। कहता क्या, कहता देखो, you look at me and then you see my face and you think, that's a terrible thing, that's the ugliest thing, you think poor boy। तुम लोग सोचते होगे बेचारा, मतलब वो ना गुस्सा दिखा रहा होता है, डेरी जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड। ऊपर ऊपर से तो तुम लोग बेचारा कह रहे हो, लेकिन अंदर अंदर से तुम डरे हुए हो। बिकॉज हर एक इंसान मुझे देख के डरता है, व्हेन आई एम इन द, आई लुक इन द मिरर, मैं खुद अपने आप को देख के डर जाता हूँ। तो वो कहता है नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। कहता तुमसे, तुम्हारे से क्यों। कहता यस। मिस्टर लैम कहता है लेटर ऑन व्हेन इट इज बिट कूलर आई गेट द, मतलब मिस्टर लैम जो है उसकी उस बात पर ही डजंट पे मोर अटेंशन, मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं, जिससे कि ही कम्स आउट ऑफ हिज दैट डिप्रेशन। वो कहता है थोड़ा हवा मतलब कि कूल होने दो, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe. I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's a magic fruit. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. वो कहता है अभी ना थोड़ा सा मतलब कि धूप तेज है, थोड़ा कूल होने दो, मैं क्रैब एप्पल्स निकाल के मैं जो हूँ जेली बनाऊंगा, तुम मेरा साथ दे सकते हो। अब डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने मेरा सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। पीपल ऑलवेज डू, why don't you ask you, why do you do what they all do, pretend is it isn't true, it isn't there, in case I see you looking and mind get upset, I'll tell you don't ask me because you are afraid to। तो वो कहता है भाई तुम डर रहे हो मुझसे पूछने के लिए, पूछो ना, सब्जेक्ट को चेंज क्यों कर रहे हो। वो कहता है यू वांट मी टू आस्क, तो बताओ क्या चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। वो कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद एनी पीपल। कहता है कि आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। ठीक है ना, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। तो डेरी कहता नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड इन, एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड ऑल अवे, इट एट अप माई फेस अप, इट एट मी अप। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, मतलब मेरा सिर्फ चेहरा नहीं जला,
I entirely I have been burnt. यहां पर I have been burnt मतलब he is depressed. He has sunk into depression. And now it is like that, it won't ever be any different. तो मिस्टर लैम्ब उसे कहता है, नो आरंट यू इंटरेस्टेड? कहता क्या? यू आर अ बॉय हु केम इनटू माय गार्डन. Plenty, I'm interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? वो कहता है मैं भगवान की हर चीज पर बहुत इंटरेस्टेड हूँ. तो वहां देखो क्या मिल रहा तुम्हें. बता रबिश. बता रबिश. वो देखो. बता क्या? घास, वीड्स. ये आपके पेपर में कई 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 बार आया है. Some call them weeds. If you like, then a weed garden. There is fruit and there are flowers and trees and herbs all sort. But over there, weeds, I grow weeds. Weeds आपके जो हैं, they are also used as a drug and they are also called as unwanted plants. Why is one green growing plant called weed and another flower? What is the difference? It is all life growing same as you and me. मुझे नहीं समझ आता. एक को हम वीड अनवांटेड प्लांट और दूसरे को हम ट्री बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई? दोनों ही ट्रीज ही तो हैं, दोनों में जान है. तो हम डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? ये जो है ना बच्चा, दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल मीनिंग. दिस पर्टिकुलर specifically this paragraph has a very philosophical meaning. ये हमने बना दिया है, ये अच्छा, ये बुरा, ये जरूरी नहीं. Everything is a gift of God and we need to understand and we need to respect everything. वीड्स की भी उतनी ही जरूरत होती है इन द प्लांट्स जितनी की प्लांट्स की अपनी जरूरत होती है. तो वो इस इनडायरेक्ट वे से डेरी क्या जो दिमाग है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है. बता वी आर नॉट द सेम. बता क्यों? आई एम ओल्ड, यू आर यंग. यू गॉट अ बर्न फेस, आई गॉट अ टिन लेग. यू स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर. व्हाट इज द डिफरेंस? बता क्या डिफरेंस हम दोनों, बता दो. तो वो कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? बता रियल वन गॉट ब्लोन अप years ago. Lemmy lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will. It fits, doesn't trouble me. कहता सालों पहले ब्लो हो गया था और मुझे लोग कहते तो है लेमी लैम. तुमने आपने सुना नहीं है, अभी सुन लोगे. तो वो कहता बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप. नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. बट आप तो अपनी डिसेबिलिटी को छुपा सकते हो ना, मैं नहीं कर सकता हूं. तो वो कहता है और लोग आपको देखकर जो है घूरते नहीं होंगे. some do, some don't. They get tired of in the end. There is plenty of other things to stare at. कहता है बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों देखेंगे. कहता like my face. कहता क्यों? Like the crab apples, the weed, the spider climbing, my tall sunflowers. वो कहता things. वो कहता it is all relative beauty and peace. As I told you, what is the significance of this fairy tale? What is it supposed to? Whether you don't need to think, they haven't all told me that fairy tale. It is not what you look like, it is what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed in a monstrous beast. I won't change. वो कहता है वो कहानी थी, उसमें वो चेंज हुआ था, मैं तो कभी चेंज नहीं होगा. इन दैट वे नो यू वोंट. अगर तुम ऐसा समझोगे तो कभी नहीं होगी. And no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if any ever kisses me. वो तो सिर्फ मेरी मम्मी है जो मुझे प्यार करते हैं, वो भी उनकी मजबूरी है और मुझे नहीं पसंद. But do you care if you ever never kiss them? The what? The girls, pretty girls, long hair, large eye, people you love. चाहते हो? Who would let me? Not one. कोई नहीं मुझे अलाउ करेगा. Who can tell?
होता I won't ever look different when I'm old. I will look the same. I'll still only have half a face. So you will. The world won't. The world's got a whole face and the world there is to be looked at. वो कहता है भाई बिल्कुल तुम वैसे ही लगोगे लेकिन दुनिया वैसे नहीं लगेगी. दुनिया के अपने चेहरे हैं और उसको देखो. तो डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड दिस ओल्ड गार्डन. कहता मेरे लिए when I am here not the only one but the world as much as everywhere. कहता आपको दर्द होता है. The tin doesn't hurt. फिर वो कहता है when it came off कब हुआ. Certainly and now I mean where the tin stops at the top. The now and then in wet weather it doesn't signify. कहता कब दर्द होता है. कहता जब थोड़ा बहुत मतलब मौसम चेंज होता है. Oh, that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry. Oh, अच्छा. आप ही जैसे लोगों को देखकर लोग कहते हैं, देखो अपने से उन लोगों को जिनको दर्द होता है, जो ब्रेव होते हैं, जो रोते नहीं है. तो मिस्टर लैम कहता है ऐसा मैंने तो नहीं कहा ना. कहता है think of all those people worse than you. Then you might have been blinded, born deaf, have to live in a wheelchair, और be daft in your head and dribble. कहता लोग ये भी तो कहते हैं क्या हो गया तुम्हारा मुंह ही तो जल गया है. कितने लोग हैं जो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, कुछ मतलब कोई दिमाग से खराब होते हैं. दैट्स ऑल ट्रू यू नो. It won't make my face change. Do you know one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she said, whispered, look at that terrible thing. That's a face only a mother could love. वो कहता है कहना बहुत आसान है. अपने से कमजोर को देखो, अपने से उनको देखो जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब लोग मजाक उड़ाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है. सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर. लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं सब सुनते होता है. इट्स व्हाट वाज क्रियल. मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट एज समथिंग बिटवीन देम. मतलब क्यों ऐसा सोच रहे हो, वो आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें उससे क्या मतलब. लेकिन वो गलत तो था ना. Maybe not meant. And this is the only thing you ever heard. कहता no, मैं तो बहुत कुछ. So now you keep your ears shut. Derry कहता you are peculiar. You say peculiar thing. You ask question I don't understand. वो कहता I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at the gate is open. तो तुम्हें यहाँ रहना है, रुको, जाना है, जाओ. तो कहता yes, but I have a hive of bees. Some hear bees, they say buzz. But when you listen to them, they hum means sing. मतलब कुछ लोग कहते हैं bees शोर मचा रहे हैं. मैं कहता हूं वो गाना गा रहे हैं. मतलब how you perceive, उसका कहने का मतलब है आप दूसरों की बातों को कैसे परसीव करते हो ये आपको समझना है. वो कहता है बट आई लाइक इट हियर. आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. इफ यू हैड सीन मी वुड नॉट हैव कम इन. अगर तुमने मुझे देखा होता तो नहीं आते. नो, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग. ट्रेस पासिंग मतलब वहां से गुजरते हुए चले जाता. दैट्स नॉट व्हाई. वो कहता आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी. मुझे लोग अच्छे नहीं लगते जब वो मुझे देखकर घूरते हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाता है यू लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, नेवर लीव इट. देयर वॉज अ मैन हु डिड इट. ही वॉज अफ्रेड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. मतलब वो इतना डरता था बस आकर उसके ऊपर चढ़ के वो मर जाएगा. डेडली जर्म्स उसके अंदर आ सकते हैं. डंकी उसको किक मार के मार सकता है. बाहर जाएगा तो हो सकता है कि बिजली गिर जाए, या फिर वो किसी लड़की को प्यार करेगा वो छोड़ के चला जाए, या फिर वो केले के छिलके पे नीचे गिरेगा, वो हंसेंगे. इसीलिए वो सबसे डर कर he used to sit inside a room. So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो वो किसी से मिला ही नहीं. तो कहता फिर क्या. एक पिक्चर आकर उसके सर पे गिरी और मर गया.
भाई जो चीज होनी होगी वो तो होगी होगी। अगर आप ये सोचकर चलोगे मैं बाहर जाऊंगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डेरी को जो है थोड़ा थोड़ा सा समझ आता, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर। तो डेरी अब उससे पूछता है कि क्या करते हो पूरा दिन? सिट इन द सन, रीड बुक्स। आपने बोला ना घर खाली है, घर खाली नहीं है, उनमें बुक्स भरे हुए हैं। दिस ऑल्सो केम इन द बोट्स। Why there aren't any curtain at the window? ये जो कर्टन है ना बेटा, दिस इज अगेन अ डुअल मीनिंग। इसके ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। यहां पर कर्टेन का मतलब है आपका, मतलब कि पर्दा। एक पर्दा हम क्यों लगाते हैं? किसी चीज से खुद को छुपाने के लिए। तो वो यहाँ पर मिस्टर मतलब कि लैम कहता है कि मेरे पास कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, तो आई डोंट नीड ऑफ एनी कर्टेन। I like the light and the darkness and the window open to hear the wind. Yes, I like that when it is raining, I like to hear it on the roof. Oh, so you are not last. Not altogether you do hear things. मतलब तुम पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारे अंदर भी उम्मीदें हैं. Hopes are there. तो डेरी कहता है, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट ही विल एवर डू, व्हाट इज गोइंग टू। ये उसके पेरेंट्स के बारे में वो बता रहा है। हाउ एवर ही वुड गेट इन टू दिस वर्ल्ड विद दैट ऑन हिज फेस, यही वो लोग बोलते। तो वो कहता है, लॉर्ड यू हैव गॉट 2 arms 2 legs eyes ears tongue brain। भाई तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो दुनिया के जैसे, और उनसे बेटर भी कर सकते हो। इसमें एक, हाँ मतलब कि सिर्फ एक तरफ थोड़ा सा जल गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहता कैसे कर सकता हूँ? कहता जैसे मैं करता हूँ। कहता आपके फ्रेंड्स हैं? कहता हाँ बहुत सारे हैं। तो वो कहता है कि लेकिन आप तो यहीं पे रहते हो। कहता भाई मेरे फ्रेंड्स हर जगह हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट इज ऑलवेज ओपन। वो यहाँ आते हैं, फायर लेते हैं, बच्चे आकर एप्पल एंड पियर खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, तो सब है। तो सब मेरे दोस्त हुए। तो कहता बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। कहता है सर्टनली यू आर, सो फॉर एज आई एम कंसर्न व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। कहता तो आप तो मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम क्या है। वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? डू आई हैव टू राइट ऑल द पर्टिकुलर्स? मुझे क्या आपका बायोडेटा बनाना है कि भाई मुझे फ्रेंड बनाने के लिए किसका नाम चाहिए होगा? कहता नहीं। तो फिर कहता बताओ। कहता डेरी, मतलब इट इज डेरिक बट मुझे डेरी अच्छा लगता है। इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। ठीक है, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, देन स्टिल आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। बता क्यों नहीं भाई? हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यू माइट इवन स्पीक बट यू नेवर सी देम। तो क्या वो आपके दोस्त बन जाते हैं? हम लोग कभी कभी रास्ते में किसी से मिलते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं, तो क्या वो हमारे दोस्त बन जाते हैं? तो मिस्टर लैम कहता है लेकिन वो दुश्मन भी तो नहीं बनते हैं ना, डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर। कहता लेकिन वो तो है तो बस सिर्फ पीपल ना, कहता पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। कहता दे आर पीपल आई हेट, दैट्स यू डू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। अगर तुम नफरत रखोगे ना, तो नफरत, एसिड ने सिर्फ तुम्हारा मुंह जलाया, नफरत तुम्हें अंदर से जला देगी। लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। There's worse things can happen, you can burn yourself away inside. After I would come home, he would have better off stop here in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people, idiot with idiot. कहता क्या फर्क पड़ता है? जब मैं घर आता हूं तो सब लोग कहते हैं इसको अपने जैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, पागलों को पागलों के साथ, अंधों को अंधों के साथ। कहता and people with no legs altogether, that's all right। कहता what kind of world that would be। कहता अगर ऐसा होगा तो दुनिया कैसी होगी? अगर सब एक जैसे एक साथ होंगे तो कैसे हम एक दूसरे की मदद करेंगे? सारे लंगड़े एक साथ होंगे तो एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे? कहता एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर बिकॉज यू weren't like them। कहता सो यू थिंक यू आर जस्ट एज सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेस।
Just by what you look, everything is different, everything is same, everything is different. भाई सिर्फ इसलिए कि दूसरे इंसान का भी मुंह जला है तो वो आपके जैसा नहीं है. जो हम ऊपर से देखते हैं वो सही नहीं है. और वो कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट. ये सब तुम कहाँ से सीखते हो? द वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. तो वो कहता है आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, अ हाउस विथ नो कर्टेन. वो कहता है ये गेट हमेशा खुला, कभी भी आ जाओ. वो कहता है बट मेरा घर नहीं है ना. तो कहता है एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज. सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट. अगर आप नहीं हो तो भी मैं आ सकता हूँ. हाँ, और भी कोई होंगे यहाँ पे. वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीड नॉट. वो कहता ओ अगर कोई और भी हो सकता है. होता नहीं नहीं. कहता इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे वुड लुक एट मी एंड रन. कहता अगर आप यहाँ पर नहीं हो और कोई यहाँ पर होगा तो वो तो मुझे देखकर भाग जाएंगे. That they might not. You would have to take the risk. So would they? No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. कहता अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो हो सकता बाकी लोग यहाँ आना बंद कर दे. तो कहता I have not moved. No. When I go down the street, the kids shout, "Lay me lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. कहता है ये सब कहने की बात है कि मुझे देख के लोग भाग जाएंगे. यहाँ बच्चे आते हैं मुझे देखकर रोड में चिल्लाते हैं, मुझे चिढ़ाते भी हैं, बट बाद में यहाँ आते भी हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. Did you get your leg blown off in the war? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples? But there is lot I have learned to do and plenty of time. Years I take it steady. कहता जब आपके पैर नहीं है तो आप ऊपर कैसे चढ़ते हो? तो कहता सीख लिया. If you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. कहता हो सकता है कि अगर आप ऐसा करो अपने आप ही किसी के सहारे के बिना तो आप नीचे गिर के मर सकते हो. I could, you said I could help you. आ जाओ. But my mother will want to know where I am. It is 3 miles home across the field. I'm 14, but still they want to know where I am. क्योंकि लोग वरी करते हैं. पीपल वरी नहीं करते, फंस करते हैं. तो कहता जाकर अपनी मम्मी को बता के आओ. कहता 3 मील दूर जाना पड़ेगा. कहता फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स. तो कहता वंस आई गॉट बैक होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक. वो कहता है वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक. यही मैंने आपको बताया था दैट इट इज यू हु हैज टू डिसाइड करना है या नहीं करना. कोई और आपको नहीं रोक सकता. कहता यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. कहता नो, ओनली यू नो दैट. इफ आई चूज, if you choose, I don't know everything boy, I can't tell what to do. वो कहता है they tell me, वो लोग मुझे कहते नहीं जाना. That do you have to agree? But I don't know what I want something no one else has got, something just mine like this garden. I don't know what it is. तो मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अलग सा चाहिए. ऐसा ये गार्डन है. तो यू कैन फाइंड. तो कैसे? कहते हैं यहाँ बैठो, वॉच करो. आई विल हैव टू सी टू द बीज. कहता है those other people who come here, do they talk to you, ask you things? कहता some do, some don't. I ask them, I like to learn. I don't believe in them. I don't like anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable. No one would know if you were alive or dead and nobody cares. तब मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई आता होगा. तुम यहाँ पे अकेले हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो मर गए. बता you think you what you please. All right then tell me some of their names. तो अगर सचमुच में आते तो नाम बताओ. तो कहता क्या फर्क पड़ता, टॉम, डिक्की और हैरी. ये जो नाम बोला ना बेटा, these are the characters of Tom Sawyer. एंड ये जो टॉम, डिक्की और हैरी है ना, दिस वी यूज एज अ, मतलब हम लोग इसको इडियम की तरह यूज करते हैं. हिंदी में बोलते हैं ना ऐरा गहरा नत्थु खैरा. तो क्या फर्क पड़ता है उसका नाम टॉम है, डिक्की है, हैरी है, क्या फर्क पड़ता है. फिर मिस्टर लैम चले जाते हैं. कहता आई थिंक यू आर डाफ्ट, पागल हो. That's a good excuse. What for? You don't talk sense.
The good excuse not to come back, and you have to got a burn face, and that's other people's excuse. कहते यहाँ ना आने का ये अच्छा बहाना है कि मैं पागल हूँ. मत. Whether you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? मिस्टर लैम कुछ बोलता नहीं है. नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर. वो शोर मचाता, वो कहता आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, मैं आऊंगा. अब डेरी चला जाता. That's there, my dears. That's you seen too. You know, we all know. I will come back. They never do though. Not them. Never do come back. अब यहाँ मिस्टर लैम जो है वो दुखी है. वो अपने आप से बात करते हैं. ऐसा ही सब लोग बोलकर जाते हैं, मैं वापस आऊंगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता. अब डेरी के घर में डेरी अपनी मम्मी से बात कर रहा है. यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स. उसकी मम्मी कहते बेटा मुझे नहीं पता क्या, मैंने उनके बारे में कई बातें सुनी है. तो डेरी उन्हें कहता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर. तो उसकी मम्मी बोलती है बीन टोल्ड वॉर्न, वी आर नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर. तुम्हें नहीं जाना है. हमें यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए हैं. उनके बारे में कई गलत बातें. तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ही इज? An old man with a tin leg lives in a huge house without curtain and has a garden. I want to be there, sit and listen to things. वो कहता क्या है, उनसे क्या डरना है? एक बूढ़ा इंसान, एक लंगड़ा इंसान जिसके पास एक गार्डन है, जिसके घर में कोई कर्टन नहीं है, अकेला रहता है, उससे क्या डरना है? मुझे वहां जाकर देखना है, चीजें सुननी है. मतलब क्या? मतलब bees singing, him talking, and what's he got to say? और वो तुम्हें क्या बताते हैं? तो कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज नेवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट. दैट देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर. उसकी मम्मी कहते यहीं बैठे रहो. वो कहता है आई हेट, you can't help the things you say, I forgive you, it's bound to make you feel bad things and say them, I don't blame. कहता मैं जानती हूँ कि तुम्हें जो है अपने इस चेहरे से दुख हो रहा है, मैं इस बात को समझती हूँ. एंड इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि तुम्हें बुरा लगता है. वो कहता है इट इज गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पॉर्टेंट. इट इज वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट इन हियर एंड आई एम गोइंग बैक देयर. वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे मेरे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मैं इट इज वॉट आई थिंक एंड फील, मैं देखना चाहता हूँ मुझे क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू हियर, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट. और मैं जा रहा हूँ, उस अंकल को हेल्प करूंगा, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग. उसकी मम्मी उसको मना करती है, बट ही गोज. डोर को स्लैम करते हुए वो चला जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट. नाउ मिस्टर लैम वो ब्रांचेस, मतलब कि वो कर रहे हैं, ब्रांच को शिफ्ट कर रहे हैं. स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट इज इट. मतलब वो उसको हिला हिला के एप्पल्स को निकाल रहे हैं. एंड दैट्स अगेन, दैट इज इट. अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंप, द ब्रांच स्विशेस बैक. मतलब वो ऐसे पुल कर रहे होते हैं तो पीछे की तरफ चला जाता है ब्रांच. क्रीक्स, देन साइलेंस. डेरी वहां आता है बहुत तेज तेज पैंट करते हुए, सांस लेते हुए. यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट, दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड. वो कहता है देखो तुमने बोला था ना मैं नहीं आऊंगा, सबने मुझे रोका था, देखो मैं आ गया. और वो एकदम शांत. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, he runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it is all right. You fell, I'm here. Mr. Lamb, it is all right. Silence. I came back, Lammy Lamb. I did come back. Derry begins to weep. वो कहता है देखो मैं वापस आ गया. देखो लंगड़े, मतलब वो रोते हुए. He comes over and कहता देखो मैं आ गया. बट कोई आवाज नहीं आती. So this is the chapter on the face of it. इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है, what is it that draws Derry towards Mr. Lamb, is a very
common question in the boards. Then ये जो third question है, the actual pain or inconvenience caused by physical impairment is often much less than the sense of alienation. This is the theme. मतलब जो लोग डिसेबल होते हैं ना, उनको अपने फिजिकल दर्द से ज्यादा जो लोग उनको एलियनेट कर देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, वो उनको ज्यादा दुख देता है. So what kind of behavior that a person expects from others? Then sixth question, will Derry get back to his old seclusion? Seclusion मतलब अकेलापन, loneliness. Or will Mr. Lamb's brief associations effect change the kind of life he will lead in the future? मतलब वो वापस वैसा ही हो जाएगा, or he might change in the future. So that's a debating question. More or less अगर हम लोग देखते हैं तो the boy's interaction with his mother says that he would have been changed. वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से लड़कर वहां आता है, अपनी मदर से लड़कर आता है, एंड ही हैज मेड अ डिसीजन दैट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ. So these are the thematic based questions of this chapter on the face of it. A chapter which gives you a very clear cut message of optimism. A boy who is pessimistic and a man who is optimistic, उसके साथ में जो brief association है, that changes the perception of that boy. So that's the chapter on the face of it.